Chapter name Solution. Method of expressing concentration of solution. Concentration of a solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution. Concentration of solution क्या होता है? Amount of solute जो amount of known solvent या solution के साथ dissolve होता है वो है concentration. Weight to weigh percent. वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट. वे टू वे परसेंट का फॉर्मूला है परसेंटेज W अपॉन W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वे ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट का परसेंट V बाय V equal to volume of solute upon volume of solution multiplied by 100. Weight to volume percent W upon V is equal to weight upon volume of solution multiplied by 100. Volume to weight percent का formula है percent V upon W equal to volume of solute upon weight of solution multiplied by 100. आगे सीखे ppm एंड पार्ट बिलियन. पार्ट पर मिलियन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ पर मिलियन पर बिलियन पार्ट सॉल्यूट पर मिलियन क्या होता है? सॉल्यूट का, ठीक है, मिलियन टाइम रहता है, जो मिलियन टाइम रहता है सॉल्यूशन से, ठीक है, तो वो है ppm. मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्ट मिलियन में रहता है हर सॉल्यूशन, वो है ppm. और पार्ट पर बिलियन होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन 10⁹ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन का जो 10⁹ पार्ट है उसका नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व होता है ऐसे सॉल्यूशन में वो है पार्ट पर बिलियन. और पार्ट सॉल्यूशन जिसका मिलियन सॉल्यूशन का मिलियन जिसपे का एक नंबर ऑफ पार्ट डिज़ोल्व होता है वो है ppm. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से. ppm is equal to mass of solute component upon total mass of solution multiplied by 10⁶. Strength. The strength of solution is defined as the amount of solute in gram present in 1 liter or dm cube of the solution. It is expressed in G per liter or G per dm cube. Strength क्या होता है? Strength solution का strength को अगर हम डिफाइन करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में रहता है प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के 1 लीटर में वो एक्सप्रेस होता है ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर डीएम क्यूब. नॉर्मेलिटी कैपिटल N. It is defined as number of gram equivalent gram of a solution of the solution. तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, प्रेजेंट सॉल्यूशन के 1 लीटर में वो है नॉर्मेलिटी. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के 1 लीटर में वो है नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट multiplied by 1000 upon volume of solution in liter. If volume V1 and normality N1 is so changed that new normality and volume are N2 and V2 N
Normality equation. Molarity, capital M. Molarity of a solution is the number of moles of solute per liter of solution or number of millimoles per ml of solution. मोलारिटी क्या होता है? सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व रहता है सॉल्यूशन के 1 लीटर में, वो है मोलारिटी. Weight of solute in m. If molarity and volume of a solution are changed from m1 v1 to m2 v2, then m1 v1 equal to m2 v2 molarity of it equal to molarity multiplied by basis C, normality of base molarity multiplied by A. Molality small m, it is number of moles per 100 gram of solvent. of moles ग्राम जो डिजोल्व होता है 100,000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट से. Small m, weight of solute upon molecular weight of solute multiplied by 1000 upon weight of solvent in gram. Small m equal to 1000 multiplied by molarity upon 1000 specific gravity minus molarity multiplied by molecular weight of solute. X, capital X. Reaction may be defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the component, solvent and solute present in the solution. Mole fraction capital X क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूट में रहता है, प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में, वो है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. Sum of mole fraction of all component in the solution is always 1. तो सभी कंपोनेंट का टोटल मोल फ्रैक्शन जो रहता है वो हमेशा 1 ही रहता है सॉल्यूशन में. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. These are the properties of dilute solution which do not depend upon the nature of solute, but they depend upon the number of particles of the solute. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं होता है सॉल्यूट के नेचर के ऊपर. ये सिर्फ डिपेंड होता है कि सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉल्यूशन में. ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं होता है, वो हमेशा सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है. तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का. अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है 4 प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर. फर्स्ट, vapor pressure. Vapor pressure of a liquid is defined as the pressure exerted by the vapor of the liquid in equilibrium with liquid itself. The equilibrium is established when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का, उसे डिफाइन करेंगे तो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है लिक्विड का, वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है लिक्विड के साथ. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जब इवापोरेशन का रेट इक्वल रहता है कंडेंसेशन के रेट से. फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. ऐसा क्या फैक्टर है जो कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का ऊपर इफेक्ट करता है। ऐसा क्या फैक्टर है कि वेपर प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के ऊपर इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ लिक्विड, मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड हैव हायर वेपर प्रेशर। तो लिक्विड का नेचर, जहाँ पे अगर लिक्विड बहुत ही वॉलेटाइल है तो मतलब उसका वेपर प्रेशर भी हाई है। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, when a non-volatile solute is added to the liquid, its vapor pressure decrease। जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है लिक्विड में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, at high altitude the atmospheric pressure is less, therefore the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure earlier at a comparatively lower temperature, so the boiling point of the liquid decreases। high altitude के रखने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे से टेम्परेचर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो कम होता है। कुकिंग एट अ हिल स्टेशन, कुकिंग बिकम डिफ़िकल्ट एट हिल स्टेशन बिकॉज टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हिल स्टेशन में कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि वहाँ पे वेपर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है। Boiling is achieved earlier, so the heat which is being supplied goes into changing the state of water from liquid to vapor। तो बॉयल अचीव्ड होता है जब हीट जो है सप्लाई होता है, चेंज होता है स्टेट का, वाटर का स्टेट से लिक्विड से वेपर तक। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of vaporization rather than being used in cooking of food material। ठीक है, latent of heat of vaporization यूज होता है, ठीक है, फूड मटेरियल को कुक करने के बजाय। यूज ऑफ ए प्रेशर कुकर, टू अवॉइड the problem in cooking, a pressure cooker is recommended for use at hill station because in a pressure cooker the high pressure is developed, as a result of which boiling is not achieved early, so the heat being supplied goes into cooking of food material। तो कुकिंग में जो प्रॉब्लम जो है अवॉइड करने के लिए प्रेशर कुकर जो है रिकमेंड करते हैं हिल स्टेशन में, क्योंकि प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर डेवलप होता है जिससे बॉइलिंग जो है पहले अचीव नहीं हुआ था करके हाई प्रेशर्स में डेवलप होता है प्रेशर कुकर में। तो जो हीट जो सप्लाई होता है प्रेशर कुकर में वही काम आता है फूड मटेरियल को कुक करने में। वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड P is equal to P0A P0BXP, mole fraction of A in vapor pressure is equal to PA upon P, mole fraction of B in vapor pressure is PB upon P। तो A का मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेस में B अपॉन P और मोल फ्रैक्शन जो है B वेपर फेस में वो है PB अपॉन P। Vapor pressure of a solvent B containing a non-volatile solute A, delta P upon P0B is equal to XA। Delta P is equal to P0B minus P, lowering of vapor pressure, delta P upon P0B equal to relative lowering of vapor pressure। This is called Rolle's law।
Ideal solution, non-ideal solution. Obey Rolle's law for all concentration and temperature. सभी concentration और temperature के लिए Rolle's law obey होता है. No ideal solution. Rolle's law obey नहीं होता है सभी concentration temperature के लिए. P is equal to PA0XA plus PB0XB. Non-ideal solution में P is unequal to P0AXA plus P0BXB. आइडियल सोल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन जो होता है ए और बी इंट्रैक्शन में सेम रहता है. नॉन आइडियल सोल्यूशन में पी बी का इंट्रैक्शन जो रहता है वो सेम नहीं रहता है ए और बी के बीच में. डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. नॉन आइडियल सोल्यूशन इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज अनइक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज अनइक्वल टू 0. Observed vapor pressure equal to calculated vapor pressure. Ideal solution में, non-ideal solution में observed vapor pressure is unequal to calculated vapor pressure. Non-ideal solution with positive deviation. P is greater than P0AXA plus P0BXV. Observed vapor pressure is more than calculated vapor pressure. ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से. ए बी का इंट्रैक्शन काफ़ी कम वीकर रहता है ए और बी इंट्रैक्शन से. डेल्टा एच मिक्सिंग जो रहता है पॉजिटिव रहता है. डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव रहता है. नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन का रहता है पी इज स्मॉलर देन P0XA प्लस P0BXB. ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर. ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है कम रहता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से. ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ए और बी इंट्रैक्शन से. डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव रहता है. डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव रहता है. एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन बेंजीन एंड टॉलिन, ब्रोमोबेंजीन्स एंड आयोडोबेंजीन्स. ये आइडियल सोल्यूशन है. फिर एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डिविजन के साथ वो है एसीटोन और बेंजीन. फिर एग्जाम्पल जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन का नेगेटिव डिविजन से वो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. Azeotropic mixture. They are the liquid mixture which boil over without any change in the composition. लिक्विड मिक्सचर जो है बॉयल होता है बिना किसी कंपोजिशन के चेंज में. दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. सच मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ऐसा मिक्सचर जो है सेपरेट नहीं होता है कंपोनेंट से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. वाटर HCl एग्जाम्पल है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स. Boiling point is a temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है इक्वल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. बाय एडिशन ऑफ a non-volatile solute, boiling point of a liquid is elevated. non-volatile solute ऐड करके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर सकते, बढ़ा सकते. तो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं. जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और सोल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है वो ऐड करने की वजह से सोल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है. ठीक है. और बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू KB मोलालिटी M. KB क्या होता है? KB होता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. It is defined as elevation in boiling point of a unit molar solution for water. मतलब पानी के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है हर एक यूनिट मोलार सोल्यूशन में, वो है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. KB इज इक्वल टू 0.52 kg पर मोल.
Kb is equal to RT square upon 1000 liter, where T is the boiling point in Kelvin and L is the latent heat of vaporization. Depression in freezing point. Temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the vapor pressure of the solid. टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल रहता है सॉलिड के वेपर प्रेशर से. ग्राफिकली इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड इंटरसेक्ट द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड. यहाँ पे टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का इंटरसेक्ट होता है सॉलिड के वेपर प्रेशर का कर्व से. When non-volatile solute is dissolved in a liquid, its freezing point is lower. जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं लिक्विड में तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल एम. के एफ जो है मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है. के एफ जो है मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है. इट इज़ डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूनिट मोलार सॉल्यूशन. उसे अगर डिफाइन करेंगे तो ये मतलब फ्रीजिंग के एफ जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसे डिफाइन करेंगे तो हर यूनिट मोलार सॉल्यूशन में जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है वो है के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट. के एफ 1.86 kg per mole. Kf is equal to RT square upon 1000 liter, where T is freezing point and L is latent heat of fusion. Osmosis. It is the spontaneous net movement of solvent particles from region of high concentration to the region of low concentration through a semi-permeable membrane or from dilute solution to a concentrated solution through a semi-permeable membrane. Osmosis क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से लेकर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट डेवलप इन सॉल्यूशन वेयर इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो डेवलप होता है सोल्यूशन में जो सेपरेट करता है प्योर सॉल्वेंट को. ठीक है. और ये प्योर सॉल्वेंट कैसे सेपरेट होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक एंट्री का. ये सॉल्यूशन जो है प्रिवेंट करता है सॉल्वेंट को एंट्री होने से. सेपरेट कर होता है ये दो अलग अलग सॉल्यूशन. ठीक है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक्सप्रेस होता है पाई में CRT जहाँ पे C is concentration in moles, I-1, T is Kelvin temperature, R is universal constant. C concentration moles में, T Kelvin temperature, R universal gas constant. Isotonic solution have same osmotic pressure as isotonic solution. Isotonic solution the solution जिसका osmotic pressure same रहता हुआ isotonic solution. Abnormal colligative property. If a solute dissociate or associate in solution, observed value of colligative property are different from calculated values. अगर solute dissociate होते या associate होते solution में observe करता है colligative properties value का और अलग रहता है calculated value से. If dissociation is there, colligative properties are increased. अगर dissociation है तो colligative property increase होता है. If association is there, colligative property decrease. अगर association है तो colligative property decrease होता है. Van Hoff factor I observed colligative property upon calculated colligative property if there is neither dissociation nor association I is equal to 1.
अगर डिसोसिएशन भी नहीं है, एसोसिएशन भी नहीं है, तो वैन हॉफ फैक्टर स्मॉल आई जो है वो 1 है. इफ डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, इफ एसोसिएशन आई इज स्मॉलर देन 1. अगर डिसोसिएशन है तो आई जो है ग्रेटर देन 1 है, अगर एसोसिएशन है तो आई जो है स्मॉलर देन 1 है. I is equal to number of particle after association or dissociation upon number of particle initially present. तो number of particle डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट रहता है. आई जो है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास रहता है अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास. Van Hoff factors and degree of dissociation for an electrolyte. AB square gives A2 plus 2B minus. AB2 A square A2 plus B minus. Initial mole 1 0 0. Final mole 1 minus alpha alpha alpha. Final mole is 1 plus alpha. I is equal to final moles upon initial mole equal to 1 plus alpha upon 1. Van Hoff factor and degree of association. N is giving AN. Initial mole is 1 0. Final mole is 1 minus alpha alpha upon n. Total mole is 1 minus alpha plus alpha n upon 1. 1 minus alpha plus alpha n. Comparison of certain property of different solutes. Vapor pressure, glucose is greater than NaCl, NaCl greater than BaCl2, BaCl2 greater than Al2SO4 3. Relative lowering of vapor pressure is Al2SO4 3 greater than BaCl2 greater than NaCl greater than glucose. Boiling point Al2SO4 3 greater than BaCl2 greater than NaCl greater than glucose. Elevation in boiling point is Al2SO4 3 greater than BaCl2 greater than NaCl greater than glucose. Freezing point glucose is greater than NaCl, NaCl greater than BaCl2, BaCl2 greater than Al2SO4 3. Depression in freezing point Al2SO4 3 greater than BaCl2 greater than NaCl greater than glucose. Osmotic pressure is Al2SO4 3 greater than BaCl2 greater than NaCl greater than glucose.